Hello everyone. In our today's lecture, we will see the exercise number 7G of your textbook, and in this exercise, we will study the sums of multiplication when a 3-digit number is given to multiply by a 2-digit number. Okay. There is no difference in the method of multiplying a 2-digit number by a 2-digit number and multiplying a 3-digit number by a 2-digit number. Okay, मेथड में कोई फर्क नहीं है. आपकी रिक्वायरमेंट एक ही है. Again and again I will tell you and remind you about the tables. Okay, only one thing you require to do multiply sums is tables. 126 multiplied by 12. Question number 1A. 126 is multiplied by 12. Okay, unit place. We will start with the ones place or the unit place of the multiplier. Here 2. 2 6 are 12. 1 carry. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 1s are 2. Okay. आपके पास जब एक्सरसाइज 7F में या आगे D में जब सम्स थे तो आपके पास ऊपर 2 डिजिट नंबर रहता था, नीचे भी 2 डिजिट नंबर होता था. अब यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर है तो we will multiply the unit place of a multiplier by the multiplicand's digit one by one. multiplicand के जो डिजिट्स है उनको एक के बाद एक मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे. सबसे पहले आप 2 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे, उसका कैरी ओवर अगले नंबर पे यहाँ पे 2 में आएगा. Then you will multiply 2 2s are. Then you will take the 100 place and multiply. Okay. Now tens place. Before starting the multiplication of 10, we will put 1 0 and then we will start multiplying the tens digit. 1 6 are 6, 1 2s are 2 and 1 1s are 1. Okay. These are the numbers. After multiplying the tens and the unit digits, we have obtained two different numbers. Okay, and we will add these two numbers. 2 plus 0 will be 2. 5 plus 6 will be 11. 5 and 1. 1 5 1 2 is the answer. Okay, next question number 1B. 147 multiplied by 13. Number B. 147 multiplied by 13. We will start with the ones place always. 3 sevens are 21. 2 carry. 3 fours are 5 plus 2 14. 1 carry. 3 ones are 3 plus 1 4. Okay. Ones digit को आप 1 by 1 all 3 digits से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. अब आपका ones की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ओवर हो गया है. अब हम tens की डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे and before starting this multiplication we will put a 0. tens डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आप 0 लिख देते हो. ये 0 नहीं भूल जाना. ठीक है. 1 7 are 7, 1 4 are 4 and 1 1 are 1. 1. Okay, 1 9 1 1. Next number C. 245 multiplied by 14. C number 245 multiplied by 14. First of all, we will multiply the ones place. Okay, 4 5 are 20. We will multiply ones place one by one with the all digits of the multiplier. 4 4s are 16 plus 2 18. 4 2s are 18. Sorry, 4 2s are 8 plus 1 9. Okay, 0. 1 5s are 5, 1 4s are 4 and 1 2s are 2. 14 3 3 4 3 0. Okay, C number. Now next number D. D number is 208 multiplied by 15.
8 multiplied by 15. 5 8s are 40. Okay. 5 zeros are 0 plus 4. 5 2s are 10. Okay. 5 2s are 10 होता है, हमें डायरेक्टली 10 लिख देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 से आगे कोई और नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम 10 का जो 1 कैरी ओवर लिख पाएंगे। ठीक है। 1 8s are 8, 1 zeros are 0 and 1 2s are 2. 0 2 1 3. ये हो गया आपका नंबर डी। 6 3s are 18, 1 will be carried over. 6 9s are 54 plus 1 55. 6 2s are 12 plus 5 17. Okay. 0 1 3s are 3, 1 9s are 9 and 1 2s are 2. 8 8 4 6 8 8 is the answer. Okay. Next, number F, G, H, I, all you will try to solve on your own. Okay? F नंबर से लेके I नंबर तक आप खुद ट्राई करना। मैं आपको डायरेक्टली करवा रही हूँ नंबर J. Okay? J नंबर 290 multiplied by 25. See here, why I am doing this particular sum and making all this for you? बाकी छोड़ क्यों दिए मैंने? क्योंकि 10 डिजिट जो मल्टीप्लायर का था वो सब में 1 था। ओके, जितने भी 1 वाले हैं उसमें से मैंने आपको 5 सम करवाए जिसमें 10 डिजिट 1 है। अब ये सब जो उसने आपको 10 डिजिट मल्टीप्लायर का जो 10 डिजिट है वो 2 दिया है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है। 5 zeros are 0, 5 9s are 45, 5 2s are 10 plus 4 14. ओके 0। देखो मैं आपको क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि जब 1 का डिजिट था, सॉरी 10 के डिजिट में 1 था, तो आपको कैरी ओवर दूसरी बार नहीं मिल रहा था, एक बार आपको कैरी ओवर मिला था। ओके। अब जब 10 डिजिट में 1 के सिवा कोई और नंबर 2 यहाँ पे आपको दिया है, तो आपको ये कैरी ओवर और उसके ऊपर दूसरा भी कैरी ओवर आएगा। See, 2 zeros are 0, 2 9s are 18 and 1 will be carried over. 4 के ऊपर मैंने 1 कैरी ओवर कर दिया है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 1s का डिजिट मल्टीप्लाई किया था तब मेरा 4 कैरी ओवर था। ओके। फिर अब मैं 10 डिजिट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 1 कैरी ओवर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपका 10 डिजिट 1 के सिवा का कोई और नंबर होगा, तब आपके पास आंसर करते टाइम दो कैरी ओवर्स मिलेंगे। ओके। आप कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि ये 4 जो है ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया है, इसको दूसरी बार गलती से काउंट मत कर लेना। ओके। 2 2s are 4 plus 1 5, 0 5 and 7. 7 2 5 0 is the answer. K number. multiplied by 28. ओके, नंबर के मैंने आपको बोला, मैं वो करवा रही हूँ। 316 multiplied by 28। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 8 है, लेकिन टेंस प्लेस में 1 के सिवा कोई और नंबर 2 है। ओके, 8 6 are 48, 4 carry over, 8 1s are 8 plus 4 12, 1 carry over, 8 3s are 24 plus 1 25। ओके, जब आपने यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया तब आपके पास 2 कैरी ओवर मिले, उन दोनों को आपने काउंट करके लिख लिया है।
8 4 8 8. This is answer. Okay, when you are getting more than one carry overs, then at a time आपको एक ही carry over मिलता है. जब आप ones plus को multiply करते हो, वो जब काम हो जाता है ना, tens plus multiply करना स्टार्ट करते हो, तो आप ones वाले carry over को कट कर दो, तो आपको याद रहेगा कि अब मुझे कौन से carry overs गिनने हैं और कौन से बाकी हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर L 342 multiplied by 31. 342 multiplied by 31. यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, इसलिए यूनिट डिजिट को जब आप 1 by तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई कैरी ओवर नहीं मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट विल वी डू? सिंपली 1 2 are 2, 1 4 are 4, 1 3 are 3. टेंस प्लस का मल्टीप्लाई स्टार्ट करने से पहले आप 0 लिखोगे. 3 2 are 6, 3 4 are 12 plus 1, 3 3 are 9 plus 1. Okay. 2 0 1 6 0 1. Okay. So this is the multiplication of number L in your exercise 7G. 7G के मैंने इतने सम आपको बोर्ड पे करवाए हैं. आप इसमें से इतने वीडियो को पर्टिकुलरली अच्छे से देख के आप बाकी के सारे सम जो मैंने क्लासरूम में वीडियो लेक्चर में नहीं करवाए आप खुद ट्राई कर पाओगे. ठीक है. सो रिमेनिंग सम आई एम लिविंग फॉर ऑल यू टू डू, यू टू ट्राई एटलीस्ट. आप सबके लिए मैं छोड़ रही हूँ, एटलीस्ट आप ट्राई करो. ठीक है. So we will move to the next exercise now, that is 7H, जहाँ पे आपको word problems दिए हैं, word sums, number story sums दिए हैं multiplication के. ओके. हमने आगे में एक्सरसाइज में word story या तो number story sums किए हैं, वहाँ पे शायद carry over नहीं था या तो 2 digit number multiply के लिए नहीं दिया था. यहाँ पे आपको 2 digit number भी होगा multiply में, 3 digit भी हो सकता है और carry over भी हो सकता है. So we will move to the next exercise number 7H. Number 1 of it is 7 children send 20 New Year cards each. How many cards did they send in all? Okay. Each means what? मैंने आपको पहले भी सिखाया था. या तो and या तो per, each ऐसे कोई वर्ड आपको अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो it means और it indicates one यूनिट, एक चीज को इंडिकेट करता है, एक नंबर को. ठीक है. तो वन स्टूडेंट ने 20 न्यू ईयर कार्ड भेजे थे बना के, तो ऐसा ऑल टुगेदर 47 स्टूडेंट है. व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन फॉर सो मेनी, देन वी विल मल्टीप्लाई. ओके. जब वन का इंफॉर्मेशन या तो डिटेल आपको दिया है एंड उसमें से आपको 47 स्टूडेंट का डिटेल फाइंड आउट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. So here we will multiply, that is final, कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि वर्ड सम्स है या तो नंबर स्टोरी सम्स है, तो हमें मल्टीप्लाई करने से पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है. H number. H नंबर में हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट. नंबर ऑफ कार्ड्स सेंड बाय वन स्टूडेंट. ओके. एक स्टूडेंट. ईच मीन्स व्हाट? EACH, ईच अगर आपको दिया है, PER पर अगर आपको दिया है, या आर्टिकल A या तो N, तो ये सब क्या इंडिकेट
देखो 1 यूनिट की डिटेल दी है, एक स्टूडेंट की डिटेल दी है, एक स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑफ कार्ड आपको सेंड किए थे. ओके, सो व्हाट विल बी राइट नाउ, वी विल स्टार्ट आवर स्टेटमेंट फ्रॉम नंबर. ओके, विथ नंबर वी विल स्टार्ट राइटिंग द स्टेटमेंट. नंबर ऑफ कार्ड्स sent by one student. एक स्टूडेंट ने कितने कार्ड बना के भेजे? 20. Therefore, number of cards sent by 47 students is equal to 47 multiplied by 20. Okay, 47 multiplied by 20 आपका हो गया 2-digit number will be multiplied by a 2-digit number. When the unit place of a multiplier is 0, we start our sum with 0. पहले सबसे पहले आप 0 राइट हैंड साइड में लिख देते हो, फिर आप डायरेक्टली 0 को छोड़ के जो 10 डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो. 2 7 4 14, 2 4 8 plus 1 9, 940. Okay, therefore the students sent 940 cards in all. Okay, सबने कुल मिला के मीन्स इन ऑल, सबने मिलके 47 स्टूडेंट ने मिलके ऑल टुगेदर कितने कार्ड्स भेजे थे न्यू ईयर के लिए? 940 कार्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. If a packet has 52 balloons, how many balloons will 24 such packets have? A packet. Okay, a packet, what will a packet indicate? A means one. One packet में अगर 52 balloons हैं तो ऐसे आपके पास अगर 24 पैकेट्स है तो उसमें टोटली कितने बलून्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अ पैकेट मींस 1. ओके, we will start our statement with number. We will write down number first of all in a statement. Okay, number of balloons in one packet is equals to 52. Number of balloons in one packet is equals to 52. Therefore, number of balloons in 24 पैकेट्स. एक पैकेट में कितने बलून्स हैं वो आपको बताया है. अब आप 24 पैकेट्स में कितने बलून हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं. ओके, 52 multiplied by 24. 4 3s are 8, 4 5s are 20, 2 2s are 4 and 2 5s are 10. 8 4 2 1. 1 2 4 8 is the answer. Okay, so 1 2 4 8 balloons in 24 packets. A box has a dozen eggs. How many eggs do 35 such boxes have? एक जो बॉक्स है उसमें 1 डजन एग है. 1 डजन मीन्स व्हाट? 12 pieces. Okay, 1 dozen means what? 12 pieces. A box has 12 eggs in it. How many eggs will be there in
इन सच 35 बॉक्सेस। एक बॉक्स में 12 बैग्स है तो 35 बॉक्सेस में कितने एग्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, डजन मतलब 12 पीसेस होते हैं। यहाँ पे आपको ये सीखने की नई चीज मिली, ठीक है। डजन मीन्स मोर 12 पीसेस। नंबर ऑफ eggs in one box is equal to 12. Number of eggs in 35 boxes is equal to 35 multiplied by 12. 35 क्या result? 2 5s are 10. 2 plus 6 plus 1 7. 0 1 9 1 2 3. 420. Okay. Boxes. Next, number 4. A man buys 36 bananas for his monkeys every day. एक दिन में उसके मंकी के लिए एक इंसान है वो 36 बनानास खरीदता है। ओके, अब हाउ मेनी बनानास डज ही बाय इन अ मंथ? एक दिन में वो 36 नंबर ऑफ बनानास अपने मंकी को खरीद के खिलाता है, तो पूरा एक महीना अगर वो खिलाएगा तो ऑल टुगेदर कितने बनानास खरीदेगा एंड खिलाएगा? ठीक है, महीना 1 month मीन्स हाउ मेनी डेज यू विल हैव? 30 days. Okay, so we can have 30 or 31 days in a month, but here you are given the information particularly that 1 month is equals to 30 days. Okay, the number of bananas purchased in 1 day is equals to 36. Every day means 1. Okay, number of bananas purchased in 1 day is equals to 36. Therefore, number of bananas purchased in 30 days is equals to 36 multiplied by 30. When the unit place of a multiplier is 0, we will put 1 0 and then we will start multiplying the tens digit of a number. That is 3 here. 3 6 are 18. 1 carry over. 3 3s are 9 plus 1 0. Sorry, 9 plus 1 10. Therefore, again buys 1080 bananas in a month. Next, number 5. Do the sums in your notebook. Okay. अब मैंने आपको
करेंगे, ओके करेंगे मीन्स वी आर नॉट कैंसलिंग एनी वन ऑफ देम, एक भी मैं कैंसिल नहीं करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 A to E sums you will try to do on your own, okay? With this question 5 we are ending up our exercise number 7H and our chapter number 7 as well, okay? And our lecture we are also ending up for today. Thank you everyone for watching my video.